Hello guys. So in the last class for the computer, okay, we have seen something called parts of computer. Fine. In the parts of computer, we have divided it into two parts. One is like accessories, another is necessary, and then after that I have divided these accessories and necessary into two parts. That is called, one is hardware and another is software, right? So in the hardware we have seen something called processing, input device and output device. If you have gone through my last video, then you can see that there is a processing, which processing we have studied about CPU. Fine. In the CPU we have seen something called, this CPU is a brain of computer. If you remember my video, or if you can go back again and just check it, CPU, in the CPU, the CPU is also called as the brain of computer. Without this CPU, computer is nothing actually. Okay. So in the CPU, it is a brain of computer. It consists of ALU. It consists of ALU. It consists of CU, it consists of MU. So what all these things are there? ALU, MU and CU. So ALU means arithmetical logical unit, MU means memory unit, CU means control unit. So if you remember, then I have told something like, ALU means arithmetical logical unit, means this is responsible to do all the arithmetical or logical calculations what we are expecting from the computer to do. Fine. So because you are saying that computer is a machine, and computer is a machine having this hardware, and these are some of the software. Today we will take something about the software. So first I am just trying to recall what we have studied in the last class. Okay. So in the CPU, when we have studied about processing, we have seen that CPU is the central processing. CPU means central processing unit. In the central processing unit, it is made up of three, it is a complete bigger box which consists of ALU, MU and CU. ALU means arithmetical logical unit, MU means memory unit, CU means control unit. ALU is responsible to do all the arithmetical and logical calculations what you are expecting or we are expecting from the computer to do. MU means memory unit. It is a memory, means it is keeping somewhere some details. Okay, in the memory we will see in the later class types of memory, and then we'll see RAM and ROM and everything. Okay, but here we just have to remember what is memory unit. Memory unit is like, it is containing the intermediate result and the final result. So I have told in the last class, let us say if you want a computer to solve an equation like ax plus like a plus b equals to e and e plus d equals to f. Example, I am giving the example. Let us say you wanted, let's see, I have done a plus b, I got the result e, and I want to use this result in the next equation. So I will keep e in a, this is called the intermediate result. Intermediate result, right? And this is called as f is a final result. So I told I am expecting computer to save the value of a plus b, whatever the value I got, in the memory unit, and the memory unit will save the intermediate value. Again in the new equation, the value of e will be used here, and then we'll add to d, then f will be the final result. So what basically I wanted to say is, let us say you have given 3 plus 4 equals to 7 and 7 plus 9 equals to 16, right? So you have given the instruction to computer, do 3 plus 4. You have not given this one. Okay, you have just given the instruction 3 plus 4. Then computer has given 7, and this 7 you have given here 7 plus 9 equals to 16. You do not know what is the value here. You have just given the instruction 7 plus 9, it is 16. So this value, 7 value, is the intermediate value, because the final result is 16, but the इंटरमीडिएट रिजल्ट, इन बिटवीन रिजल्ट. इंटरमीडिएट मीन्स हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि बीच में जो रिजल्ट आया, हम लोग जब पहला इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो वैल्यू आया उस वैल्यू का यूज करेंगे हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो पहले इक्वेशन के वैल्यू को हम इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं फाइनल रिजल्ट. तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ स्टोर होता है? हम लोग का ब्रेन, अगर हम लोग अपने का बात करें, अपने
मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो 3 + 4 7, तो हम लोग अपने ब्रेन में सेट कर लेते हैं, ओके 3 + 4 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे 7 + 9, ओके 7 तो मेरे ब्रेन में था और 9 हम जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ब्रेन काम करता है। लेकिन हम लोग का ब्रेन अगर हम बोल देंगे ऐसे करके करने के लिए 7 9 8 2 5 1 7 0 + 6 1 7 2 = 2, तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लो कुछ वैल्यू +8 9 2 = कुछ वैल्यू आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू जो जोड़े हैं ना इसको दिमाग में रखो। क्या हम लोग रख सकते हैं इतना बड़ा वैल्यू का दिमाग? हम लोग को 10 + 15 25, 100 + 200 300, 100 + 180 280, अब 100 + 1000 1100, ऐसे करके हम लोग याद करते हैं और इसको छोटा छोटा कैलकुलेशन दिमाग में रखते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन हम बोल दे तो हम लोग को 5 सेकंड 10 सेकंड में भुला देंगे कि अरे क्या था। So that is what, and but computer is storing the value like we are storing in the memory. Computer also storing in the memory, that is the memory unit. And हम लोग इस मेमोरी यूनिट में जो वैल्यू रखते हैं उसी वैल्यू को हम लोग फिर से नया वैल्यू में जोड़ते हैं और फाइनल वैल्यू देते हैं। इस वैल्यू को भी हम लोग मेमोरी यूनिट में रखते हैं। सो मेमोरी यूनिट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, एंड एएलयू तो क्रिटिकल है ही। एएलयू और मेमोरी यूनिट मिल करके, और सीयू क्या करता है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन लगाता है। क्योंकि हम लोग क्या किए, एएलयू में E3+4 आया, यहाँ पे एएलयू में एएलयू से जो वैल्यू आया 7 वो गया एमयू में। अब फिर से क्या करें 7 + 9, तो फिर से एमयू का वैल्यू जाएगा एएलयू में, एएलयू को फिर से +9 मिलेगा। अर्थमेटिकल देखो प्लस है तो अर्थमेटिकल हुआ ना ऑपरेशन, प्लस मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमको कैलकुलेशन करना है 3+4, तो एएलयू में आया, एएलयू का जो वैल्यू आया 7 उसको हम एमयू में डाले, और एमयू का वैल्यू जो 7 था उसमें एक और हमको +9 आया, तो 7 + 9 एएलयू में जाएगा, एडिशन होगा, फिर से वैल्यू हमको एमयू में आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के बीच में काम करता है, ये एएलयू और एमयू का बीच में ये कॉम्बिनेशन चलते रहता है। और कौन है जो इसको सही से चलाते रहता है, सिंक्रोनाइज करते रहता है, ये है कंट्रोल यूनिट का काम, कंट्रोल करते रहता है कि कैसे चलेगा ये। तो ये तीनों यूनिट मिलकर के सीपीयू बनता है। दैट इज व्हाई द सीपीयू इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी मत समझना कि हम बस प्लस कर रहे हैं तो इतना सीपीयू को प्लस में ब्रेन क्यों बोलते हैं। सीपीयू डज नॉट डूइंग एनी एडिशन ओनली, इट इज डूइंग ऑल द टास्क व्हाट यू वांट, all the task. You just think what task you wanted to say to computer, all the tasks CPU will do. So इसलिए हम लोग CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर नहीं ये सब लिखे थे तो एक बार लिख लीजिए फिर से, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो हम लोग देखे थे प्रोसेसिंग में CPU, दैट इज फाइन। सीपीयू में हम लोग क्या क्या पार्ट है देख लिए। फिर इनपुट डिवाइस देखे थे हम लोग। तो इनपुट डिवाइस जब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि डिफरेंट इनपुट टाइप के लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइस होते हैं। जो हम लोग देखे थे कि इनपुट टाइप अगर हम लोग का टेक्स्ट है तो हम लोग को इनपुट डिवाइस हो गया टेक्स्ट, मतलब अल्फाबेट। मान लो हम प्रदीप लिखना चाह रहे हैं, तो प्रदीप हम अगर लिखेंगे कहीं पे, तो ये लिखने के लिए कौन सा चीज़ का, कौन सा डिवाइस का यूज़ करना होगा, कीबोर्ड का। तो हम लोग को चाहिए कीबोर्ड। अगर हम लोग को मतलब कुछ भी ऑडियो करना है, ऑडियो के लिए कैसे चाहिए, माइक से। अगर हम लोग कुछ बोल करके रिकॉर्ड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइक का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से डिफरेंट आउटपुट इनपुट डिवाइस की बात किए थे। आउटपुट डिवाइस की बात किए थे कि अगर हमको आउटपुट चाहिए, जैसे हम लोग को मूवी देख रहे हैं, तो मूवी हमको देख रहे हैं तो कैसे चाहिए, मॉनिटर चाहिए, राइट, मॉनिटर चाहिए। तो ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट इनपुट टाइप के लिए डिफरेंट डिवाइसेस होता है इनपुट का, डिफरेंट आउटपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस होता है। सभी हम लोग पिछले क्लास में नोट कर लिए थे। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे हार्डवेयर में। हार्डवेयर पे हमको लगता है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप लोग को हो गया है। अगर आपके पास अभी कंप्यूटर है, या अगर आपके कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई बात करता है हार्डवेयर के बारे में, तो आप लोग अच्छा से बता सकते हैं कि सर हार्डवेयर जो है वो ये सब होता है। हार्डवेयर में ये तीनों कंटेंट होता है। प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेसिंग में ये होता है, अगर आप हमको सीपीयू खोल के दे दीजिएगा हम बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। इसीलिए सीपीयू को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कोई भी कंप्यूटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग हार्डवेयर को बंद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ओके, और यही हम लोग का लाइफ है एक्चुअली। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, सॉफ्टवेयर।
हम लोग का आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अभी तक क्या है कि अगर अगर आप लोग देखे होंगे, मतलब आजकल एक ही चीज हम लोग को सुनाई देता है, राइट? नाउ इट इज एवरीबडी इज सेइंग, if you will talk from the prime minister perspective, if you'll go to the news, if you'll go to the internet, if you'll go to the facebook, if you'll go to the whatsapp, हर जगह पे एक ही चीज होता है, डिजिटल डिजिटल सॉफ्टवेयर, ये यूज कर लो वो यूज कर लो। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो मान लो छोटा छोटा एग्जांपल हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग जैसे किसी का बर्थडे आया तो क्या करते हैं, अरे पहले पहले कुछ भी पता नहीं था, किसी को विश करना है तो कैसे करेंगे। आजकल क्या होता है कि डाउनलोड कर लिए फोटो, एक एप्लीकेशन होगा कोई, उस एप्लीकेशन में उसका फोटो, मतलब एक जिसको बर्थडे विश करना है उसका फोटो लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। उसके बाद से केक वेक का फोटो सेट कर देते हैं। हाँ, उसके बाद अच्छा सा वीडियो बन गया, और अच्छा सा वीडियो बन गया उसको हम स्टेटस में लगा देते हैं, स्टेटस में लगा दिए, उसका हैप्पी बर्थडे विशिंग हो गया। तो दुनिया कैसा हो गया है, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्ट, पहले के दुनिया में ये बर्थडे कोई चीज़ ही नहीं होता था। बर्थडे होते थे, बड़े बड़े लोगों के बर्थडे होते थे, हम लोग के लिए कोई बर्थडे नहीं होता था। आजकल का दुनिया ऐसा हो गया है कि एक गांव में बैठा हुआ एक बच्चा जो थोड़ा सा मतलब एडवांस है, हल्का सा, जिसके घर में मोबाइल आ गया है, वो भी आज अच्छा से बर्थडे विश करता है, किसी को अच्छा से यूज़ करता है, गाना सेट कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो हम लोग ये छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ऑलवेज हम लोग देखते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक द इंडिया डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड, सब सब कुछ। एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है हम लोग का। अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग का जो गवर्नमेंट है, जब सरकार जब हम लोग की बनती है तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिसाइड होते हैं। उसी में एक डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी मिनिस्ट्री, राइट? आईटी मिनिस्ट्री क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होता है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीज़ है ये डिजिटल, कि हम लोग को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक डिवाइड, मतलब एक सरकार का एक अंग होता है जिसमें सब कुछ उसी पे डिस्कशन होता है, उसी पे पॉलिसीज बनती है। तो डिजिटल, जैसे इंडिया बोला कि जो हम प्रधानमंत्री बोले कि हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डिजिटल तो बोल दिए, मीनिंग क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि ये सब सभी लिंक है, सभी कुछ लिंक है, और इसको समझ जाएंगे आप तो सॉफ्टवेयर समझ जाएंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम सबसे अच्छा एग्जांपल अभी कर लेते हैं कोरोना का। ये कोरोना का जो अभी समय चल रहा है, अभी क्या हुआ कि हम लोग लगभग 22 मार्च के आसपास में, राइट, 22 मार्च के आसपास से हम लोग घर में बंद हो गए। तो 22 मार्च के आसपास से घर में बंद हो गए। अगर हम लोग बात करेंगे पुराने ज़माने की, क्या पुराने ज़माने में ऐसा नहीं आया था सिचुएशन? आया था, बट समझ सकते हैं एक सिचुएशन कि पुराने ज़माने में ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास टेलीविज़न था, ना मेरे पास कोई भी साधन नहीं था। वी डू नॉट हैव एनीथिंग। इफ यू थिंक फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, ओके, 100 साल पहले, 200 साल पहले, वी डू नॉट हैव एनीथिंग। तभी भी लोग जी लिए, और इससे बड़ा बड़ा आया था सिचुएशन खराब, जिसमें घर में रहना पड़ गया था, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, सिचुएशन आया था। तो उस समय में भी, और उस समय में मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अगर हम आज की बात करें तो आज की दुनिया और उस समय की दुनिया में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्न युग में आ चुके हैं, समय चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, ब्रेन चेंज हुआ। आजकल डेवलपिंग ब्रेन, आजकल जो जन्म लेते हैं बच्चे वो भी डेवलपिंग ब्रेन के होते हैं। पहले जो चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते थे पूरी लाइफ में, आजकल वो बच्चे 10th क्लास में सीख जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आजकल डिजिटल दुनिया में है, मार्केटिंग ऐसा हो गया है, ब्रेन ऐसा हो गया कि बहुत फास्ट हो गया है। तो हम बोल रहे थे कि कोरोना वायरस का केस बोल रहे थे कि अभी जो कोरोना वायरस का केस है, तो क्या करते हैं आप लोग? अभी तो सब लोग घर में हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करें, अगर जैसे आप लोग के स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे पेरेंट्स की, फिर हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल्स की, ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, ठीक है।
हम चार चार पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है स्टूडेंट, जैसे आप लोग हैं, एक पेरेंट्स जैसे आपके गार्जियंस हुए, एक प्रोफेशनल्स जैसे हम लोग हुए जो प्रोफेशनल्स मतलब जो जॉब करते हैं, और एक हो गया बिजनेस जो बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें, और ये ऐसा नहीं है कि चारों लोग में से किसी को फ्री दिया गया और किसी को घर में बंद किया है, सभी लोग घर में बंद है। एज पर द रूल एवरीबडी इज पैक्ड इन द होम, बट सभी का काम अलग अलग है, राइट? स्टूडेंट का काम क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम है एजुकेशन, राइट? आपको पढ़ाई करना है। आपका काम है खेलना, आपका खेलना है, ठीक है? आपका मतलब ये सब काम है, राइट? दो ही काम है, पढ़ना है, खेलना है और सोना है, वही है। पेरेंट्स का काम क्या है? घर के बारे में सोचना है, राइट? थिंकिंग अबाउट फैमिली। पेरेंट्स का काम है हम लोग को जितना भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को है या उसके बच्चे को है या घर को संभालना है, ठीक है? घर को संभालना है। प्रोफेशनल का काम क्या है? जैसे हम लोग का प्रोफेशनल है, हम लोग जैसे प्रोफेशनल है, हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो हम लोग का जो ये हम लिख रहे, ऐसा नहीं है कि यही काम बचा हुआ है, ये हम इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी जो फर्स्ट काम है ये हम लिख रहे हैं। बिजनेसमैन का काम क्या है? अपने बिजनेस को चलाना, रन द बिजनेस। अब देखिए हुआ क्या कि ये सभी लोग डिवाइडेड थे, ये सभी लोग स्टूडेंट, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, सभी लोग अलग अलग, सभी का काम अलग अलग है, लेकिन सभी लोग कहाँ फंस गए? लॉकडाउन में, ठीक है? अब लॉकडाउन में जब फंस गए, काम तो रुकेगा नहीं। अगर आप एजुकेशन नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। आप खेलेंगे नहीं, आपका दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाएगा, खेलना भी उतना ही जरूरी है। अब पेरेंट्स का है कि फैमिली के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई लॉकडाउन है कुछ भी है, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। प्रोफेशनल्स, अगर हम लोग का ठीक है लॉकडाउन हो गया, बट अगर हम लोग को रहना है लाइफ में, कुछ करना है तो काम करना होगा अपने कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं। बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाना है, नहीं तो अर्जित का पैसा कहाँ से आएगा? तो ये क्या हुआ कि हम लोग लॉकडाउन में है, लेकिन काम सबका अभी तक ऐसा ही ऐसा है। तो अभी हम अब एक एक करके एग्जांपल देते हैं कैसे अभी काम चल रहा है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, दुनिया में सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है, डिजिटल का क्या मीनिंग है, ठीक है? तो जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको अभी एजुकेशन ऑनलाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है। आपको यूट्यूब का यूज कर ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे आप गूगल का यूज करके भी कुछ कुछ देख सकते हैं, ठीक है? आपको क्या हो रहा है कि देखिए, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। आप कैसे कंटिन्यू रखें? तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है, आपको गूगल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? आपको कुछ खेलना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? गेम डाउनलोड कर लेते हैं, जो कैंडी क्रश है, ठीक है? कार रेसिंग है, ढेर सारा गेम आता है। कैंडी क्रश है, कार रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, मतलब एक और भी कोई गेम था, बहुत अच्छा अच्छा गेम सब आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? खेल भी सकते हैं गेम डाउनलोड करके। तो आपका काम हो गया। फॉर यू देर इज टू थिंग, एजुकेशन एंड प्लेइंग, राइट? सो एजुकेशन you have got from the online education platform. Game you can download in your mobile and you can play the games, okay, to make your brain fresh. So online education you can get it from YouTube, WhatsApp, Google, Zoom, different Zoom Cloud पे आप कर सकते हैं, different वीडियो कॉलिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, ठीक है? तो अगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भाई लॉकडाउन तो आ गया, बट मेरा कुछ हुआ प्रॉब्लम नहीं, हम तो पढ़ पा रहे हैं, मैं स्टूडेंट है और हम पढ़ पा रहे हैं, मेरे को तो सब एजुकेशन का क्लास का टीचर मिल रहा है, मुझे सब जिससे बात करना है वो मिल पा रहा है, हम गेम भी खेल पा रहे हैं, मतलब आपका काम चलता रहा,
how this happened? This is happened only because of digitalization. This happened only because of digital. अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं रहता, ये सब कहाँ पे मिल रहा है आपको? ऑनलाइन मिल रहा है, राइट? ये यूट्यूब कुछ नहीं है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। आपको यूट्यूब आप खोल लिए, आप देख लिए, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब जो चैनल बनाया है, यूट्यूब जो पूरा होल बनाया है, उसके अंदर में ढेर सारे चीजें लिखे गए हैं, बहुत सारे चीज। सो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। गेम आप लोग डाउनलोड किए, खेलना शुरू किए, लेकिन गेम कौन बनाया? गेम क्या है? अंदर में रूल्स होगा बहुत कारण लिखा हुआ, जिस कारण से आप गेम को जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है, गेम का इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर हम पेरेंट्स की बात करेंगे, ये हो गया स्टूडेंट। पेरेंट्स में थिंकिंग अबाउट फैमिली के लिए थिंकिंग करने का मतलब क्या हो गया कि फैमिली के लिए सोचना है कि उनको पैसा कहाँ से आएगा, उनको मतलब उनके लिए हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा। तो हम लोग क्या करें, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बैंकिंग, ठीक है, शॉपिंग। तो बैंकिंग, शॉपिंग, ये सब जो कर रहे हैं पेरेंट्स, वो कैसे कर रहे हैं? मोबाइल है, मोबाइल से आपका गूगल पे है, फोन पे है, इंटरनेट बैंकिंग है, आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप किसी से पैसा एक्सेप्ट मतलब कोई भेज रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आप जितना है ग्रोसरीज आइटम है, बिग बास्केट पे, कोई भी चीज़ यूज़ करके आप लोग क्या करते हैं? सामान खरीद लेते हैं। तो ये भी पेरेंट्स को भी अपना काम लगभग चल रहा है। हम लोग का क्या है, प्रोफेशनल्स का काम क्या है? हमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जिस कारण से क्या हो रहा है कि हम कहीं से भी बैठ कर काम कर ले। मेरे को ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको कहा जाता है वर्किंग फ्रॉम होम, WFH, इसको बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होम। अब वर्किंग फ्रॉम होम कैसे हुआ? ऐसे थोड़ी ना है कि वर्किंग फ्रॉम होम मतलब भाई वर्किंग फ्रॉम होम रहता तो दुनिया में कोई ऑफिस ही नहीं जाता। वर्किंग फ्रॉम होम उसके लिए है कि क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होते हैं डेटा पे होता है, डिजिटलाइजेशन के साथ होता है, जिस कारण से क्या होता है कि हम कहीं पे भी रहे, मेरे पास बस इंटरनेट कनेक्टिविटी और जितने भी रिक्वायर्ड लैपटॉप्स और जितने भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर लैपटॉप की बात करें या हमको इंटरनेट या हमको नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, ये सब मेरे पास अवेलेबल है अच्छा से, तो हम कहीं से भी रह के काम कर सकते हैं। तो मेरा भी काम नहीं रुका, हम भी आराम से जो भी काम मिल रहा है हम काम कर रहे हैं अच्छा से, ठीक है? तो प्रोफेशनल्स को भी दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को भी अपना लगभग काम हो गया, स्टूडेंट भी अपना काम कर रहा है। बिजनेसमैन का क्या हुआ कि बिजनेसमैन में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल मतलब बड़ा होता है, ठीक है? तो अगर हम अपने बिजनेस की छोटे छोटे बिजनेस की बात करें, तो छोटा बिजनेस को प्रॉब्लम हो गया, स्मॉल बिजनेस को प्रॉब्लम हो गया, और बिग बिजनेस। तो अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, तो स्मॉल बिजनेस क्या होता है? गांव में छोटा सा दुकान या मीडियम क्लास का दुकान खोल लिए, और वहाँ पे जब तक हम दुकान नहीं जाएंगे दुकान नहीं चला सकते हैं। बिग बिजनेस मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे आपको चाहे लॉकडाउन था या नहीं था, हम लोग घर में ही बैठे हुए हम लोग ऑर्डर कर देते थे। तो आजकल बिजनेसमैन को भी अपना ब्रेन यूज कर रहा है। देखे होंगे सभी लोग अपने दुकान का एक ये करके इंटरनेट पे मतलब फेसबुक पे डाल देता है कि यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, आप इस नंबर पे संपर्क करें, ऐसे करके डालता है, जिससे कि अपना बिजनेस कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी उससे संपर्क करेगा तो कोशिश करेगा उसको ऑनलाइन डिलीवरी या नहीं तो उसको होम डिलीवरी दे दे। आप ऑर्डर हमको फ़ोन पे ऑर्डर दीजिए, हम अपना कोई एजेंट को भेजेंगे आपके घर पे डिलीवरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं छोटे बिजनेस भी आप कोशिश कर रहा है कि उस फील्ड में आए, क्योंकि यही आज दुनिया की मांग है। यह छोटा सा मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये सीख दे दिया हम लोगों को कि हम लोग आराम से घर में बैठ के काम कर सकते हैं, घर में बैठ के ही सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन सभी कुछ के लिए हम लोग को डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, राइट? सो अब डिजिटलाइजेशन, जब हम लोग का गवर्नमेंट बोलेंगे कि डिजिटलाइजेशन हो गया, हम लोग इंडिया को डिजिटल कर देंगे, रेलवे को डिजिटल कर देंगे, जो भी है बैंकिंग को डिजिटल कर देंगे, हम लोग का कैश ट्रांजेक्शन है, आपको बोलता है कि आप कोई पैसा निकालेगा नहीं, सभी डिजिटल हो चुका है, ठीक है? अभी कोई कैश घर में नहीं रखेगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी जैसे कोई बोले डिजिटल, दैट मीन्स यू हैव टू
तुम्हारा ब्रेन जल्दी काम करना चाहिए कि हम लोग को सीधे बोला जा रहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर पे चल जाएंगे। और इसी सब कारण से ये जो पूरा देख रहे हैं, इसी सब कारण से अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, देखेंगे NEP करते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th क्लास से, याद रखिएगा, 6th क्लास से ही कोडिंग करना है हम लोगों को। ये कोडिंग क्या होता है भाई, वही चीज़ देखेंगे। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब, व्हाट्सअप, गूगल, और ये जो हम लोग को वर्किंग फ्रॉम होम में, और ये जो बैंकिंग, शॉपिंग, और ये जो बिजनेस को हम लोग जो भेजते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये सभी के लिए कोडिंग रिस्पॉन्सिबल है। उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। उसी कोडिंग को जब हम लोग कर लेते हैं, जो कोडिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड करता है, डेवलप करता है, तो फाइनली एक सॉफ्टवेयर बन जाता है जिसका आप यूज़ करके लाइफ को ईजी बनाते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि खास के बड़े बड़े शहर में कोडिंग्स करते हैं बच्चे 6th क्लास से, लेकिन एक छोटे शहर में या मीडियम क्लास शहर में भी लोग कोडिंग से भागते हैं, कोडिंग को समझ नहीं पाते हैं, कंप्यूटर से भागते हैं, कोडिंग से भागते हैं। और आज का जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, इतना बेस्ट पॉलिसी है जहाँ पे हम लोग को 6th क्लास में ही अपना कंप्यूटर का पहला कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना होगा। इसका मतलब है कि जब कोडिंग हमको 6th में पढ़ना है, इसका मतलब ये सब जो अभी जितना हम पढ़ रहे हैं ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, मेमोरी, ये सब दूसरे, तीसरे, चौथे क्लास में हो जाना चाहिए। ऐसा है सिचुएशन, और ज़रूरत हो जाना चाहिए था। तो आप ये एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। फाइन। तो अभी हम लोग जितना चीज़ बताए हैं, इससे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हमको मिलेगा, तब तक हम लोग ना इतना कुछ जो हम घर में बैठ के कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही हम लोग कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को नाम दिए हुए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला चीज है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अगर थियोरेटिकली समझना है तो हम समझा चुके हैं कि थियोरेटिकली हम सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि जितना भी हम लोग अभी काम कर पा रहे हैं घर बैठे, आप मोबाइल में रह के यूट्यूब में वीडियो देख पा रहे हैं, आप गेम खेल पा रहे हैं, आप मतलब किसी को बर्थडे विश करना है, फ्रेम में सेट कर दिए हैप्पी बर्थडे टू यू चलने लगता है, आप किसी को बोलते हैं मिसिंग ऐसे करके जो भी भेजते हैं, तो एक डिज़ाइन करके, जितना भी आजकल जितने भी टिकटॉक ये वो क्या क्या सब चलता है, ये सभी जो है आप लोग एज ए यूज़र, हम लोग एज ए यूज़र वहाँ क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में, गए एप्लीकेशन डाउनलोड किए, एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख गए, ओपन किए तो बोलता है सेलेक्ट द फोटो, हम फोटो सेलेक्ट कर लिए, अचानक से एक नया फ्रेम बन जाता है, इसमें गाना बजने लगता है, हैप्पी बर्थडे, ये सब कुछ। लेकिन हमको समझना है कि भाई जब मैंने एक एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन था उसको हम डाउनलोड किए, और जब एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो हम उसको यूज़ करना शुरू किए, जब यूज़ किए तो हमको बोला कि सेलेक्ट द फोटो, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बस सेलेक्ट द फोटो ही एगो मतलब काम होता है, बहुत सारे काम होता है। सेलेक्ट द फोटो ऐसे करके किसी को बर्थडे विश वाला हमको कुछ बनाना है, तो सेलेक्ट द फोटो, हम सेलेक्ट फोटो किए, यहाँ पे एक वीडियो मतलब एक छोटा सा वीडियो बन गया, यहाँ पे ऐसे करके फोटो, इसके अंदर में इस ऐसे गोला के जो मेरा फोटो आ गया, यहाँ पे गाना बजने लगा, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, जो भी है। तो ये इतना किए, आप क्या किए, आप यूज किए, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और यूज़ किया, बट आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने जब फोटो सेलेक्ट किया तो ये ऐसे बन गया, और ये कहीं हम भेज दिए, स्टेटस पे लगा दिए, ये हुआ कैसे? तो ये जो हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो था, ये एप्लीकेशन जो भी हम लोग मूवी मेकर या क्या क्या मेकर खाता है, ये सभी एप्लीकेशन जो है, यही है एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर। ये जो है, ये एप्लीकेशन जो बनता है, ये सॉफ्टवेयर से मिलके सॉफ्टवेयर से बनता है, इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बेसिकली आपको एप्लीकेशन नाम दिया जाता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर में क्या होता है, कोडिंग्स होता है, कोडिंग होता है। कोडिंग क्या होता है, लैंग्वेजेस का यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज, याद है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स
सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जो हम लोग बोलते हैं कि 5th जनरेशन या 4th जनरेशन में आया है, तो ये लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। उस लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग कोडिंग करते हैं, जिस कोडिंग से हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप लोग अपना ज़िंदगी आसान कर लेते हैं। लिंक देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, 5th जनरेशन में पढ़े थे ना, 5th जनरेशन में पढ़े थे सी लैंग्वेज। तो ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग कोडिंग लिखते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके हम बड़ा सा पेपर लिखते हैं ना, बनाते हैं कुछ कुछ, उस तरह से सी लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग कोड लिखते हैं। वो कोड जो है एज ए ग्रुप ऑफ कोड एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। कोड मतलब एक बहुत लंबा सा 2000, 5000, 20000, 50000 लाइन का कोड होता है, वो मिल करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। और ये सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन यूज़र के लिए। यूज़र क्या करता है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको यूज़ करना सीख जाता है और अपना लाइफ को आसान कर लेता है। तो यूज़र का रोल हुआ यूज़ करना, लेकिन इतना जो अंदर में ये पार्ट जो हुआ, ये पार्ट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये जो बनाना सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क। ओके, तो हम लोग व्हाट इज सॉफ्टवेयर आप देखते हैं डेफिनेशन। तो लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लिख रहे हैं हम यहाँ पे, लिखिएगा सॉफ्टवेयर is a collection of programs procedure, instructions, okay, that perform some task on computer, that perform some task on computer. Okay, first is this one. Second point is, it is the set of programs, it is the set of programs which help the computer to function properly. आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, फिर इस पे हम इस पे चर्चा करेंगे क्या है ये। ठीक है, तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हम लोग सॉफ्टवेयर के मतलब पास्ट में बहुत कुछ पढ़ लिए, जिससे क्या लगेगा कि ये चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा। अभी डेफिनेशन वाइज हम लोग कहेंगे तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन मतलब ग्रुप, राइट, सब कुछ कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, तो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। प्रोग्राम्स मतलब कोड, जो प्रोग्राम्स था इसका मतलब हो गया कोड। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कोड। कोड क्या हुआ, याद रखिएगा, हम जो बोले थे कोड मतलब कोडिंग। कोड क्या हुआ, कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या हुआ, यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और ऐसे हम पढ़ सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कोड, और ऐसे पढ़ सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर लैंग्वेज से जो हम लोग कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग का कलेक्शन जो है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर, उसी को कलेक्शन को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं। उसका मतलब यही हुआ कि जो कोडिंग करते होंगे वो कुछ स्पेशल होता होगा।
कोडिंग बहुत स्पेशल होता है जिस कारण से हम लोग इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं और दुनिया सॉफ्टवेयर पे चल रही है। इन द मॉडर्न लाइफ अभी हम लोग जो पीछे जाएंगे हो नहीं सकता है, हम लोग को बस अब आगे ही जाना है। और आगे अभी अभी से अगर आप आगे बढ़ना है लाइफ में, अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप डिजिटल हो ही नहीं सकते। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है सभी प्लेटफॉर्म डिजिटल होते जा रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। इसका मतलब कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, आपको यूज नहीं करना है सॉफ्टवेयर, आप कब तक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? भाई आपको सॉफ्टवेयर बनाना भी है कभी। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे नहीं तो आप यूज करते ही रह जाएंगे, और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है नया सॉफ्टवेयर बनाते रह जाएंगे, और आपको अगर इससे लिंक नहीं कर पाएंगे तो आपका लाइफ सही से चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग का आज का युग जो है वो सॉफ्टवेयर युग ही है, ठीक है। इसलिए ऑलवेज सभी बड़े लोग बोलते हैं कि डिजिटल हो जाना है, डिजिटल हो जा रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है? एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। देखिए जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो कभी जैसे कोरोना के कारण बहुत कुछ होता है ना, एक यहाँ पे लॉकडाउन होगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको इतना बजे बंद कर देना है, इतना बजे खोल देना है, 10 तरह का इंस्ट्रक्शन हो जाता है। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन होता है, राइट, प्रोसीजर्स। तो ये प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शन, यहाँ भी लिखा हुआ है ना इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि बस प्रोग्राम्स के साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्या होता है कि देखिए जैसे आपको हम बोलेंगे एग्जाम्पल, आपको बोलेंगे कि आपको मॉर्निंग में उठना है, ठीक है, सुबह में उठना है पहला चीज। फिर दूसरा बोलते हैं उठ करके फ्रेश होना है। तीसरा बोलेंगे ब्रेकफास्ट करना है। चौथा बोलेंगे आपको ये नहाना है। फिर पांचवा बोलेंगे आपको बुक लेके बैठ जाना है पढ़ने के लिए। तो ये क्या हुआ कि हम 5 स्टेप आपको बोले, आपको सुबह उठना है, आपको फ्रेश होना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, आपको नहाना है, फिर आपको बुक लेके पढ़ने बैठना है। तो ये सेट हुआ, आपको यही रूल फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके पहले बुक लेके बैठ गए, फिर जा करके हम ब्रेकफास्ट किए, फिर जाकर फ्रेश हुए, ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक सेट ऑफ रूल्स हुआ और इसी तरह से जिंदगी को फॉलो करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये भी एक पॉलिसीज पे काम करता है। ये जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं ना, ये जो कोडिंग लिखते हैं ये एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कोडिंग लिखना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, नेक्स्ट इज दिस वन, नेक्स्ट इज दिस वन, नेक्स्ट इज दिस वन। और ये जो कोडिंग लिखते हैं किस लैंग्वेज में लिखते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? ढेर सारे लैंग्वेजेज होते हैं, जैसे सी बोल सकते हैं, C++ बोल सकते हैं, जावा बोल सकते हैं, पाइथन बोल सकते हैं, पर्ल बोलते हैं, SQL बोलते हैं, डेटाबेस रिलेटेड लैंग्वेजेज होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सभी लैंग्वेजेस को हम लोग यूज करके एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कोडिंग होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन यूज होता है। और वो ये सब हम क्यों करते हैं इतना चीज? जिस कारण से कंप्यूटर जो है कोई टास्क को परफॉर्म करता है। अब आप मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपका मूवी चलाते हैं आप, ठीक है, आप एक मूवी अपने लैपटॉप में लिए, आप उसको चला रहे हैं। तो आप उसको कैसे चला रहे हैं? मूवी है, एक यूज किए VLC मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि बस इसी में आप चला सकते हैं वीडियो। आप वीडियो या ऑडियो जो भी है आपके पास ढेर सारा MP4 प्लेयर होता है, बहुत सारे प्लेयर, ढेर सारे प्लेयर। ये प्लेयर्स जो है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? VLC क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप जितने भी एप्लीकेशन ले लीजिए जिसमें आपको अब मोबाइल में आप चलाते हैं ना, वीडियो ऑन कर दिए चलते हैं, उसका फॉर्मेट चेक कीजिएगा। पहले आता था 3GP फॉर्मेट, फिर आ गया MP4 फॉर्मेट। तो ये सब सभी क्या है? ये VLC क्या है? यानी जो विंडोज मीडिया प्लेयर ये क्या है? ये सभी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जिस अगर हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज करके एक मूवी चला रहे हैं, मतलब आप उसको यूज करना तो जरूर सीख गए। छोटा छोटा सॉफ्टवेयर है तो यूज करना जरूर सीख जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे होगा। भाई ये सॉफ्टवेयर तभी बनाया होगा जब हम लोग इसमें क्या किए होंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग किए होंगे। और कोडिंग करते समय क्या किए होंगे? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते होंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे हम लोग को यूजर के तरफ से वीडियो मतलब आएगा, ये जैसे सेलेक्ट करेगा जिसको, तो आपका जो भी मूवी है उसको कैसे रीड करना है। आपका मूवी है, समझ सकते हैं, आपका वहाँ पे आदमी है, वहाँ पे डिजाइन है, वहाँ पे मारपीट है, वहाँ पे आवाज़ है, वहाँ पे डांस है, गाना है, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर को समझना है सब कुछ। भाई इसके इतने चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे इस VLC में?
इसका मतलब हर एक गाना डांस ये सब वो सब सभी कुछ के लिए VLC को क्या करना हुआ हो, VLC जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्या हुआ, हर एक चीज़ का कोडिंग यूज़ किया गया होगा। इसका मतलब हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज यूज़ किया गया होगा, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार किया होगा। मतलब समझ सकते हैं कि देखने में आपको VLC बहुत छोटा चीज़ लगता होगा, VLC है VLC यूज़ कर लो, बट कभी ये सोचे हैं कि VLC बनाने वाले कितने ज़्यादा सोचे होंगे, इसी VLC सॉफ्टवेयर कितना मुश्किल से बना होगा। दैट इज द सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये हो गया, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच हेल्प द कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली वही चीज है ना कि कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट अच्छा था, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच हेल्प द कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। समझ सकते हैं, कंप्यूटर को फंक्शन प्रॉपर्ली करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। कंप्यूटर को फंक्शन प्रॉपर्ली करने का मतलब कंप्यूटर को अच्छे से चलने के लिए भी मतलब हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। ऑफ कोर्स इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर सही नहीं है, इसका मतलब ये भी होता, ये इस लाइन का मतलब ये समझ सकते हैं हम कि जो कंप्यूटर जो है जब चलाते हैं हम, ठीक है CPU है हम लोग का, डिफरेंट डिफरेंट रैम्स है, हम यूज़ कर लिए, कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए, लेकिन जब स्टार्ट हुआ उसी समय में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है जिस कारण से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और कंप्यूटर के ऊपर में से स्क्रीन आ गया, आपके पास ढेर सारा चीज़ दिखने लगा। वो जो दिखता है ना, जब वो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम तो पावर दी ऑन, तभी मेरे को सॉफ्टवेयर यूज होता है अंदर में जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही हम लोग का कंप्यूटर चल पाता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाता, अदरवाइज डब्बा लेके बैठे रह जाते हैं। सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। ओके, सो एग्जाम्पल क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम OS बोलते हैं, स्मॉल में OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम बताएंगे उसके बारे में बाद में। तो ये सब लिख लीजिए सबसे पहले। फाइन, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी, ये तो हो गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अभी तक समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ इज कस्टम सॉफ्टवेयर। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोग जाने थे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, अब देखिए कि 4 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये लिखिएगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं कि क्या क्या मीनिंग है उसका। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़, अगर समझ जाएंगे आप ना, तो आप कंप्यूटर के अंदर का इतना अच्छा चीज़ समझ जा रहे हैं ना, तो आपको लगेगा अभी हम कंप्यूटर में रियली एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, रियली व्हाट इज कंप्यूटर। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर इतना बड़ा चीज़ है, मतलब इसको इतना चीज़ करना पड़ता है अभी। और ये चीज़ हम जो बता रहे हैं वो शुरुआत है, दिस इज द शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो ये चीज़ लिखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला पॉइंट है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं उसको। लिखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑफ कोर्स कोई भी सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब कोड होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब कोडिंग ही होता है। एग्जैक्टली दिमाग में वही घुसाना है। कोडिंग अगर हम कर लिए, कोडिंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड लिखना, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या लिखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ computer program that is designed to run a computer's hardware and application program. Application program. If we think of the computer system as a layered model, second point, if we think computer system as a layered architecture, layered, L-A-Y-E-R, layered model, as layered model, the software system software is the system software is the interface between the hardware and user application various examples are operating system, OPERATIN, operating system, drivers, server, etc. ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। Okay, so what is the examples? Examples are, you can write after this one, after application. Example is operating system, OPERATING, operating system, drivers, 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 servers, 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 etc. Okay, so now we'll see what is system software. Okay, so see, हम लोग अभी तक देखे हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, सॉफ्टवेयर को समझ गए कि सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को चलाने के लिए भी काम आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आदमी को भी मतलब उसका लाइफ आसान कर देता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो जिस कारण से पूरा दुनिया काम कर रहा है, अपना अपना जो एप्लीकेशन चला रहा है, जिस कारण से पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चल रहा है, ठीक है। इतना कुछ अगर सॉफ्टवेयर कर रहा है मतलब सभी लोग तो सॉफ्टवेयर काम यूज़ कर रहा है। आप भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। सो इन दैट वन वी हैव सीन द फोर्थ थिंग, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर इज द application software, third is programming software, and the custom software, right?
सो हम लोग एक एक करके सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मीनिंग होता है उसका। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो है ना, हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं, सिस्टम क्या बोलते हैं, सिस्टम खराब है, मतलब क्या होता है पूरा जो पूरा कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्टवेयर, बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज कंप्यूटर करता है कुछ ना कुछ यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जैसे हम लोग बात करें, पहले डेफिनेशन क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑफ कोर्स जब हम बोले कि कोई सॉफ्टवेयर है तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा, प्रोग्राम होगा। इतना तो क्लियर हो गया, अभी कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बोले कोई सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो बोलेंगे प्रोग्राम्स क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे अरे ये प्रोग्राम्स क्या होता है, देखिए कोडिंग होता है, कोड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो कोडिंग करते हैं, वो लिखते हैं। तो बोलते कोडिंग क्या होता है, अरे कोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं ना, तो मैथ बनाते इसमें क्वेश्चन दिए और उसमें क्वेश्चन का दिया हुआ है तो माना कि ये बराबर एक्स और ये सॉल्यूशन सोल्व करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ बनाते हैं, मैथ में कुछ हम सॉल्यूशन बना दिए, लेकिन उसका हमको कुछ एप्लीकेशन जिंदगी में दिख नहीं पाता है। लेकिन कोडिंग क्या होता है कि हम लोग कोडिंग के लिए अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर मतलब कंप्यूटर का क्या लैंग्वेज होता है, तो मतलब कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर जो है ना, सो ये हम लोग का इंग्लिश और हिंदी में मतलब सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, इंग्लिश हिंदी उर्दू मैथिली ये सब में नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसका अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज करके जिसको सीखना पड़ता है। एक आदमी को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, ठीक है। ये फ्रांस इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज नहीं होता है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग को बोलेंगे ना सी प्रोग्राम, जैसे बोलेंगे सी प्रोग्राम है ये, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जावा प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम है ये, जावा प्रोग्राम है ये। तो ये जावा प्रोग्राम मतलब जावा कोड, सी प्रोग्राम मतलब सी कोड, सी प्लस प्रोग्राम है तो सी प्लस प्लस कोड। तो ये अगर कोई आदमी जो पढ़े लिखे हैं ना, उसको पूछिएगा कि भैया आपका एप्लीकेशन जो बनाते हैं आप कौन सा लैंग्वेज में बनाते हैं, तो वो एक टेक्निकल भाषा में बोलेगा कि हम लोग ना जावा प्रोग्राम में बनाते हैं, जावा लैंग्वेज में, हम लोग डॉटनेट में बनाते हैं, हम लोग एसक्यूएल में डाटाबेस यूज करते हैं, ऐसे करके वो बात करेगा। तो ये चीज़ भाई, ये चीज़ जो होता है वो कोडिंग होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि प्रोग्राम क्या है तो बोलेंगे कोडिंग। कोडिंग क्या है तो बोलेंगे क्या, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज करके जो हम लोग सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं, कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज करके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जिस इंस्ट्रक्शन को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करने के बाद जो हम लोग इसको पैकेज कर देते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बोलेगा तो फिर उसका मतलब कि ये सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज है वो तो सीखना पड़ेगा। तो यस, ये लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। और डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं जिसको बोलते हैं सी प्लस प्लस, जावा, ढेर सारे लैंग्वेजेस होते हैं, PHP, वेब डिज़ाइनिंग का अलग लैंग्वेज होता है, वेबसाइट बनाने का अलग लैंग्वेज होता है, CRM एप्लीकेशन बनाने का अलग लैंग्वेज होता है, ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने का अलग लैंग्वेज होता है। आप PHP में बना सकते हैं, आप डाटाबेस कुछ और यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ होता है लैंग्वेज। तो अभी हम ये हो गया, इसका मतलब समझ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ bunch of code. System software is also a bunch of code that is designed to run a computer hardware and application program. इसका मतलब क्या है, that is designed, system software is designed to run a computer hardware and application program. कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर तो हम लोग पढ़ लिए थे, अभी कंप्यूटर हार्डवेयर हम लोग पढ़े थे ना, कि जो इसमें प्रोसेसिंग होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ये होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेशन जैसे हम लोग यूज करते हैं VLC मीडिया प्लेयर, तो VLC मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए, VLC मीडिया प्लेयर तो एक सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर जो हम लोग जिसमें अपना मूवी या गाना चलाते हैं वो तो एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर पर हम रख दिए, और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को रख दिए तो भाई अपने आप चलने लगेगा क्या, नहीं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को रख दिए, अब क्या किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरा VLC, देखो ऐसे है, ये है कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर स्क्रीन हुआ, और इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग अगर बात करेंगे, अभी मान लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये कंप्यूटर हुआ, राइट, ये पूरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में हम लोग को ढेर सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बताएंगे अगर, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये टोटल
देख रहे अचानक से ये स्क्रीन आ गया है। ये स्क्रीन कैसे आ गया, ये स्क्रीन कैसे आ गया? यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर कोई मीडिया प्लेयर की बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे अगर हम ये वाला जो बात कर रहे हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या खुल जाता है। क्लिक किए, ऐसा खुल गया, ठीक है। अगर हम इसमें कोई गाना चलाएंगे, मान लीजिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि ऑफिस का लैपटॉप है तो हम इसमें कुछ नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है। अगर इसमें हम टेस्टिंग के लिए अगर कुछ दिया रहेगा तो दिखा सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखते हैं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑफिस का लैपटॉप हम कुछ नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम कुछ गाना रखें तो यहाँ पे हम चलाएंगे, ऐसे ऐसे जब चलाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए साउंड है, ये वाला म्यूट है ना, ये वाला साउंड, ये यहाँ पे चलाएंगे और ये साउंड है, इसको हम ऑफ करते हैं, म्यूट हो गया, ऑन करते हैं तो यहाँ पे साउंड को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आप समझना है, ये चीज़ सब कर लेगा, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना ये सब कर लेगा। तो इससे कंप्यूटर सीखना और कंप्यूटर आना नहीं बोलते हैं। आपको ये समझना है कि जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है वो बनाया कैसे, और इसमें इसका रोल क्या है, यहाँ पे साउंड कैसे आ गया, यहाँ पे चलाएंगे तो चल कैसे गया। यही सब करने के लिए जो अंदर में जो कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम से बना है, कोडिंग से बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो ये डिज़ाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम आपको दिखाए कि हम लोग विंडोज़ मीडिया प्लेयर में साउंड के लिए साउंड है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपना वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट किए और आपका वीडियो चलने लगा, तो कभी कभी क्या होता है, साउंड ही नहीं आ रहा है। कभी बोल सकते साउंड नहीं आ रहा है, साउंड में तो सब कुछ सही है, साउंड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कभी सोचे? तो इसमें सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर और हम लोग का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, इसको कंप्यूटर के साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो इसका हार्डवेयर को समझना है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे साथ में रखें। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को साथ में चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर, दोनों को मिला के चलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी थिंक कंप्यूटर सिस्टम एज ए लेयर्ड मॉडल, ये चीज़ थोड़ा नया है, थोड़ा हाई लेवल है एक्चुअली ये। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम को, कंप्यूटर सिस्टम को एक लेयर्ड मॉडल समझते हैं, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। सिंपल सी बात, यही बात हम बोले ना कि जो एक एप्लीकेशन है और हार्डवेयर है, ये एप्लीकेशन हुआ, ये हार्डवेयर हुआ, ये दोनों को बात एक दूसरे से बात कराने के लिए, क्योंकि हार्डवेयर तो अपना अलग डायरेक्शन में काम करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अलग डायरेक्शन में बनाता है। तो दोनों, क्योंकि मीडिया प्लेयर कोई और बनाया है और कंप्यूटर कोई और बनाया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके चलना है। मिल के चलाने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर कंप्यूटर चलाना है तो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक लेयर्ड मॉडल की बात करेगा ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब जो इंटरेक्ट कराता है दोनों के बीच में आता है। जैसे हम दो आदमी, आप दोनों हैं, दोनों बात नहीं कर रहे तो हम बीच में चले गए, हम दोनों को समझा दिए, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, बात हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं, हम इंटरफेस है जो दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में जो एक सामंजस्य बैठाता है जिसको कहते हैं इंटरफेस, वही करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और सर्वर। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत भास्ट टॉपिक है, ये एक लाइन का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट आप इतना ही समझ लीजिए, कंप्यूटर को जब हम लोग हार्डवेयर मेरा तैयार है और कंप्यूटर का एक हमको मेन जो शुरुआत चेहरा देखना है, जो ऑन हो गया चेहरा देखना है, तो उसके लिए जो सबसे पहले जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इट इज अ सिस्टम, इट इज सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, इट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड, इट इज ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट इज ड्राइवर। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे जो मीडिया प्लेयर में साउंड वाला, तो साउंड कार्ड होता है। साउंड जो है ना ऐसे नहीं आता है, साउंड के लिए एक साउंड कार्ड होता है। तो हम लोग को सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर जो बना ये कोडिंग कर दिया कि भाई अगर सॉफ्टवेयर ऐसे चलेगा, लेकिन
अगर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आपका सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा रहे उसको साउंड नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, साउंड कार्ड जो है वो हार्डवेयर हुआ और उसका जो VLC मीडिया प्लेयर या विंडोज मीडिया प्लेयर जो भी हुआ एक सॉफ्टवेयर हुआ। तो साउंड कार्ड को VLC मीडिया प्लेयर या विंडोज मीडिया प्लेयर के साथ जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना। एक्चुअली यही सबसे डिफिकल्ट समझना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक अच्छा सा क्लास लेंगे। तो इसमें हम बताएंगे कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और कैसे क्या मीनिंग होता है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम सब बताएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो मेरा कंप्यूटर है ही नहीं, कुछ हम है ही नहीं, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा बेसिकली। इसलिए कभी कोई बात करे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो हम लोग बताएंगे कैसे चेक करते हैं, लेकिन बोलना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। सो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं है। ठीक है, ड्राइवर्स, हम बस अभी ड्राइवर्स की बात की, जो साउंड ड्राइवर्स होते हैं ढेर सारे। आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं बहुत सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि साउंड के लिए साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स के लिए अलग ड्राइवर, ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है लैपटॉप में तो ऐसा नहीं कि कोई फेल हो गया है, इसका मतलब आपका ड्राइवर जो है ना वो नहीं इंस्टॉल है, तो आपको ब्लूटूथ ड्राइवर डालना होगा। उस तरह से डिफरेंट सर्वर बायोस बहुत कुछ है एग्जाम्पल। तो ये आप देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।